Hello students, in this class we are going to discuss about the sources of the ancient Indian history, and when we talk about the sources, then inscription is a very important source. And what is inscription? Inscription is, it's a form of writing, that is engraving on hard surfaces, just like the metal. It could be stone or rocks. तो rocks, stone के ऊपर जो हम लिखते हैं, that is known as inscription. And the study of inscription is known as epigraphy, and the study of the old language that we used in inscription, that could be Pali, Prakrit or any other old language, that study of old language is called paleography. These concepts, I think, clear to you people, what is epigraphy and what is paleography. So students, when we talk about the inscription, first let us discuss what actually inscription is. Inscription में we are here, it is the inscription of the Allahabad Prashasti या Prayag Prashasti इसको बोलते हैं, that is Allahabad pillar inscription, and that was written by Hari Sen, who was the court poet of Samudragupta, and Samudragupta was an important Gupta ruler, the important ruler of the Gupta dynasty, also known as the Napoleon of India. Inscription में students देखिए, इस inscription में first of all the length of this Allahabad pillar inscription is 35 feet around, and width is also 35 inches something. So that is the length and breadth of this, and this column portion is known as the shaft. This is known as the shaft, and above this shaft is the inverted lotus concept is there. What is this? Inverted lotus है. Inverted lotus, जब upside down lotus. तो ये हमने लोटस को यहाँ पर रिवर्स कर दिया है, तो ये इसकी जो है लीव्स हैं. तो ये लीव्स और इसके ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द अबाकस, और इसके ऊपर एक एनिमल होता है. दिस एनिमल इज पर्टिकुलरली द लॉयन इट इज. तो दैट वाज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का. अब इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेरी मच फेमस एंड इंपॉर्टेंट आल्सो बिकॉज on this pillar inscription of three important rulers are written. First is Ashok, second is Samudragupta, and third is Jahangir. तो इन तीनों रूलर्स के इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखे हुए हैं इस पिलर के ऊपर. तो अशोका को हम जब डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज रिटन ऑफ द अशोका. अशोका ने इस पिलर के ऊपर डायरेक्शंस दी हैं अपने महामात्रास को. एज वी नो दैट आफ्टर द कलिंगा वॉर there was a complete change in Ashoka. Ashoka's heart and mind was completely changed after seeing lots of violence. Countless dead bodies जब अशोक ने देखी तो अशोका का माइंड बिल्कुल और हार्ट completely चेंज हो गया था. And there was a new Ashoka. There was the birth of a new Ashok. And this new Ashok ने एक नया धर्म स्टार्ट किया. That was known as the Dhamma. तो उस धम्मा को प्रोपेगेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट दैट धम्मा और द रिलीजन, द न्यू रिलीजन that was formed by Ashoka after Kalinga war, he appointed many officials, and those officials were known as Mahamatras. तो इसमें अशोका ने महामात्रास को अपॉइंट किया और उनको डायरेक्शन दी कि देयर मस्ट बी द रिजॉल्व. तो जो उसमें बुद्धिस्ट के जो में रिजॉल्व उसमें डिस्प्यूट्स चल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम में, और वो डिस्प्यूट्स बाद में हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अशोका ऑर्डर्ड हिज महामात्रास गो एंड ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द बुद्धिस्ट संघ. तो ये जो अशोका का जो इसमें डायरेक्शंस दी हैं, महामात्रास को डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन टू द महामात्रास. और महामात्रास कौन होते थे? द ऑफिशियल्स विच वर अपॉइंटेड बाय अशोका इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म. तो यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन जो अशोका का लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा है कि जिसमें महामात्रास को बोला गया है कि बुद्धिस्ट के बीच में जो डिस्प्यूट्स आ गए हैं उन डिस्प्यूट्स को आप सॉल्व कीजिए, अदरवाइज दैट विल बी हार्मफुल फॉर बुद्धिज्म. आफ्टर दैट समुद्रगुप्त ने भी इसके अंदर, हरिसेन जो इसका समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट था, उसने भी इसमें इंस्क्रिप्शन एंग्रेव करवाए हैं और उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त को प्रेज किया है. एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नोन एज यूलॉजिकल इंस्क्रिप्शन. यूलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस में इट्स अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसमें रूलर्स को प्रेज किया जाता है, उनको डेडिकेट किया जाता है और उनमें कंप्लीट डिवोशन दिखाई जाती है. तो इसमें समुद्रगुप्त को क्यों प्रेज किया गया है, क्यों समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने 9 रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को डिफीट किया और 11 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया को डिफीट किया, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू इंटीग्रेट द एंटायर कंट्री. और ऐसा इंटीग्रेशन हम लोगों ने मौर्यास के टाइम में देखा था, आइदर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक. एंड मौर्य डाउनफॉल हुआ 185 BC में. From 185 BC to 320 AD, it was a period of around 500 years, and that was a period of complete darkness and dark age in Indian history. No political unification was there, and India was divided into small number of states.
सुंगा, कान्हा एंड सातवाहन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जो इंडिया में रूल कर रहे थे. Besides this, India was also attacked by the Indo-Greeks, Saka, Pratyahar and Kushan. So there was no political unification in the country and that's why it was known as the Dark Age. तो उस Dark Age के बाद जो एक Light Age आई वो because of the Guptas आई. और गुप्ताज में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जैसे श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, पुरुगुप्त, रामगुप्त. तो उसके बाद समुद्रगुप्त वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर और समुद्रगुप्त ने इंडिया को यूनिफाइड किया. 9 रूलर्स ही डिफीटेड ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड 11 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया. तो समुद्रगुप्त को प्रेज किया गया है इस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर बाय हरि सेन ही स्कोर्ड पॉइंट. आफ्टर दैट जहांगीर ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें डिस्कस किया है. तो 3 रूलर्स को हमने इसमें डिस्कस किया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर. अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये हमें यूपी में इंपॉर्टेंट प्लेस है इलाहाबाद. तो इलाहाबाद के फोर्ट में ये आज प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है. और ये भी माना जाता है कि इलाहाबाद से अराउंड 50 किलोमीटर्स एक प्लेस है कौशाम्बी. तो इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ओरिजिनली ये पिलर कौशाम्बी में था और बाद में अकबर के टाइम में इसको वहां से ट्रांसपोर्ट कर वापस इलाहाबाद फोर्ट में इसको इंस्टॉल किया गया है. बट सर्टेन स्कॉलर्स डोंट एग्री विद दिस थ्योरी आल्सो. तो अदरवाइज ये भी माना गया है कि कौशाम्बी में पहले ये पिलर कौशाम्बी में था और बाद में इसको इलाहाबाद में ट्रांसफर किया गया था. तो दैट वाज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. अब इसमें और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पीटी एग्जाम्स में आ सकते हैं. उसमें ये है कि जैसे एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है फ्लीट. अब फ्लीट ने जो स्टेटमेंट दिया है, फ्लीट की स्टेटमेंट ये है कि इस इंस्क्रिप्शन को आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त लिखा गया है, posthumously after the death. So what Fleet says, Fleet believed in the theory that this inscription of Allahabad inscription was written after the death of Samudragupta. But certain scholars also don't accept this theory also, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन के अंदर अश्वमेध यज्ञ और समुद्रगुप्त की डेथ का डिस्क्राइब नहीं किया गया है. अब समुद्रगुप्त की डेथ को डिस्क्राइब नहीं किया गया और अश्वमेध यज्ञ को भी डिस्क्राइब नहीं किया गया इसके अंदर. और अश्वमेध यज्ञ हमें कौन से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे. तो अगर उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए होते तो डेफिनेट करवाए थे और इसको इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है. तो फ्लीट की जो थ्योरी है कि ये समुद्रगुप्त की डेथ के बाद लिखा गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है. क्योंकि अगर इनकी डेथ क्यों एक्सेप्टेबल हम नहीं कर पाते हैं इसको, क्योंकि एक तो इसमें अश्वमेध यज्ञ का जिक्र नहीं है जबकि इन्होंने किए थे, और दूसरा उसमें ये बोला गया है कि ये उनकी डेथ के बाद लिखा गया है. अगर डेथ के बाद लिखा गया है तो डेफिनेटली उसमें उनकी डेथ की डेट मेंशन होनी चाहिए और डेथ की डेट मेंशन नहीं है. और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये समुद्रगुप्त वाज अलाइव, जब वो जीवित थे तभी ये लिखा गया. तो फ्लीट की थ्योरी यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर रिफ्यूट हो जाती है. दूसरा, उसके बाद इसके जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और इसकी लैंग्वेज प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है ये. इसके साथ साथ इसमें गुप्ता क्रोनोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया गया है. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. गुप्ता क्रोनोलॉजी को जैसे फाउंडर वॉज श्रीगुप्त, फॉलोड बाय घटोत्कच, फॉलोड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त तक इन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी को डिस्कस किया है. तो यही इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. कैसे, जो हमारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो इस पिलर से हमको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीजें पता चलती हैं. इट वाज जैसे अशोका में के बारे में पता चलता है कि अशोका ने धम्मा को फॉलो किया, एक नया धर्म बनाया और महामात्रास को अपॉइंट किया. और महामात्रास को अपॉइंट करने के बाद बोला कि जो बुद्धिज्म के बीच में जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उन डिस्प्यूट्स को खत्म कीजिए. तो हमें बुद्धिज्म की नॉलेज हुई, किसकी वजह से हुई, इस पिलर की वजह से हुई. तो दैट्स व्हाई इट्स अ सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. सिमिलरली समुद्रगुप्त को इसमें प्रेज किया गया. तो समुद्रगुप्त क्या, गुप्ता की डायनेस्टी की हमें नॉलेज होती है कि समुद्रगुप्त वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया और इन्होंने 9 रूलर्स और 11 रूलर्स साउथ इंडिया के डिफीट किए. तो ये नॉलेज हमें कहां से मिली, हिस्टोरिकल नॉलेज हमें एंशिएंट इंडिया की कहां से मिली, ऑब्वियसली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिली. फिर जहांगीर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्तास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को मिल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पिलर inscription, and that is the importance of this inscription also. Okay students, thanks.